Today's 12th. So we will first start today with some problems related to quantum mechanics. First of all, we will try to understand what is the difference between a barrier, a well, and a step. Right. What is the difference between these three? Now, if someone tells you to draw a schematic diagram of these three, barrier can be drawn like this, right? A well can be drawn like this, okay, and a step can be drawn like this. Barrier, well and step. अच्छा, इसके x and y axis में क्या है? इसमें पहले इन दोनों पे रहते हैं, then we will talk about this. यहाँ पे we assume that it is at the center, so this is 0 और इसका the total dimension is L, ठीक है ना? Then it is minus L by 2 and this one is plus L by 2. So this is a period. Similarly in this case. Now what actually is in the y-axis? X-axis with the distance x is in the y-axis. So this is position. What is in the y-axis? क्या होना चाहिए? Energy, potential or energy. So in the y-axis it is basically V, E or V. So let's call this one as V. V naught. ठीक है. उसी तरह से this is for the case of a barrier. उसी तरह से in this case this is supposed to be the V naught. ये और ये. You know. X. और इसका क्या फंक्शन है? यहाँ पर दिस इज अगेन इज V naught. ये बॉल तो 0 से स्टार्ट होता है, starts with 0. From 0. अच्छा,
अच्छा, टुडे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास वी आर डिस्कसिंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल्स, अ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. वन ऑफ देम इज कॉल्ड अ बैरियर, दूसरा है वेल और तीसरा है स्टेप. दिस इज हाउ द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक. Now we will concentrate today on this one. Okay, and this is called a potential well, or you can call it as one-dimensional finite quantum well. वन डायमेंशनल फाइनाइट क्वांटम वेल. सेकेंड वाला जो फाइनाइट क्यों बोल रहे हैं इसको? बिकॉज वाई V0 इज फाइनाइट. बिकॉज ऑफ V0 इज फाइनाइट. ये इनफाइनाइट कब होता? जब V0 इनफाइनाइट होता, जब इसका टूवर्ड्स इंफिनिटी जब चला जाता, तो ये बेसिकली हम टॉकिंग अबाउट ये, तब मैं उसको बोलता वन डायमेंशनल इनफाइनाइट क्वांटम वेल. बट वी आर कंसिडरिंग इट एज अ वन डायमेंशनल फाइनाइट क्वांटम वेल. तो दिस इज, इसका विड्थ कितना है? विड्थ इज अगेन L. विड्थ ऑफ द वेल इज L and it is distributed along the center. Right? इसका मतलब है this position is minus L by 2 and this position is L by 2. तो two boundaries, इसका जो दो बाउंड्री है, एक है minus L by 2 और एक plus L by 2. ठीक है, मैं यहाँ पे और क्लियरली इसको ड्रॉ करता हूँ. दिस इज हाउ इट इज. एक ऐसा वेल है जो कि सेंटर पे है. ये है एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे पोजीशन है, सो दिस इज 0. दिस इज माइनस L बाई 2. दिस इज L बाई 2. मतलब इसका टोटल डायमेंशन है L. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये पोटेंशियल जो है, दिस इज V0. क्लियर? दिस इज द पोटेंशियल वेल. नाउ इस कंडीशन में देखो तीन रीजन अराइज हो रहे हैं. देयर आर थ्री रीजन्स. एक है रीजन नंबर 1 यहाँ पे, एक है दो साइड, वेल के दो साइड पे 1 and 2, और एक ओके लेट मी कॉल दिस वन एज 3. 1, 2 and 3. अंदर वाला है 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है. ठीक, there are 3 different regions. If there are 3 different regions, there will be 3 different Schrödinger's equation. So Schrödinger's equation corresponding to region 1 यहाँ पे हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन लेंगे. रीजन 1 का श्रोडिंगर्स इक्वेशन कैसा होगा? माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर psi बाय dx स्क्वायर प्लस Vx इज इक्वल टू Ex. ये जनरल श्रोडिंगर्स इक्वेशन है, दिस इज जनरल वन. तो फॉर रीजन 1
इक्वेशन कैसे चेंज होगा? रीजन 1 को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट दिस Px. तो considering this condition, considering a finite well, मैं Vx को लिख सकता हूँ Vx as equal to, there are two conditions, either it will be 0 either it will be not. 0 कब होगा? when it is inside the well. इसके अंदर जब होगा तब मेरा जो potential is no longer existing, so it is when it is inside the well, that means when my mod x is less than L by 2, मतलब प्लस और माइनस दोनों से अगर कम है, और V0 कब होगा? when my mod x is greater than equal to बाहर, एक पोटेंशियल के अंदर एक पोटेंशियल के बाहर. ठीक है? So we are now considering the region 1. That means we are considering this position. इस position में out of these two conditions, which one is applicable? Is it inside the barrier, inside the well, or outside the well? Region 1 is outside the well. Okay. 1 and 3 are outside, only 2 is inside. So it is outside. Outside the well. Outside the well मतलब my V will be equal to 0, है ना? देखिए इसमें एक बार जस्ट सी कुछ प्रॉब्लम है तो जस्ट क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है. Should I repeat it fresh page पे? Finite potential. Finite potential well. This is a finite potential well. कुआं है, इसका कितना width है in terms of energy in both sides? Easy. ठीक है? Alright. X axis, ये X axis है. This is the X axis. Potential इसका भी कितना है? L. Okay. So this is L. This is the center. This is minus L by 2 यहाँ पे है, प्लस L by 2 यहाँ पे है. ठीक है? यहाँ तक ठीक है? There's no problem with this. तो मैं इसी को if I would like to represent it in terms of potential with respect to x distance, so where there are two regions formed, two conditions. Either it will be inside the well. Inside the well होगा तो potential तो zero है ना. इसके अंदर तो कोई potential exist नहीं करता, so it will be zero. When it is inside the well मतलब my mod of x is less than L by 2. तो इस region के अंदर it is also less than plus L by 2 minus L by 2. And it is V0 when my mod of x is greater than equal to L by 2, outside the region, outside the well and inside the well. This is inside the well
This is outside. ठीक है. सो व्हेन आई एम प्लेइंग इनसाइड, अच्छा मैं इसको अगर 3 रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ये हो गया तुम्हारा रीजन 1, ये हो गया रीजन 2, ये हो गया रीजन 1 2 3. तो इनसाइड द वेल में कौन सा रीजन आएगा? रीजन 2. और आउटसाइड द वेल में 1 and 3. ठीक है, क्लियर? नाउ आई विल अप्लाई श्रोडिंगर्स इक्वेशन इन 3 रीजन्स, वन बाय वन. तो पहले हम लोग रीजन 1 के बारे में बात करते हैं. इन रीजन 1, सिंस Vx इज इक्वल टू 0, Vx इक्वल टू 0 होगा ना, whereas Vx फिट नहीं रहेगा. सो बाई जो ओरिजिनल श्रोडिंगर्स इक्वेशन है माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर साई बाई dx स्क्वायर प्लस dx साई इज इक्वल टू ई साई. ये तो ओरिजिनल श्रोडिंगर्स इक्वेशन है ना. तो यहाँ पे दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल बी इक्वल टू 0 इन रीजन 1. तो रहेगा क्या? माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m ठीक है. ये इक्वेशन रहा, ठीक है ना. मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. इफ देर इज नो पोटेंशियल, ये ओके रीजन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये यहाँ पे 0 नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा? ये रीजन होगा, है ना. यहाँ पे 0 होगा. तो हम लोग 1 में तो एग्जिस्ट कर रहा है. तो माई इक्वेशन विल बी प्लस ठीक है. और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है. नाउ आई थिंक इट्स ओके. V0 minus. So there is an expression 2m e by h naught square, and there is an expression 2m v naught by e by. ये हो गया. ये वाला भी एग्जिस्ट करता है. दिस एग्जिस्ट इन विच रीजन? दिस रीजन 2.
inside the well. This expression is valid inside the well, and this expression is valid outside the well. So in region 1 and 3. तो लोग याद है के क्या है? रिमेंबर व्हाट इज के? wave function wave number P is equal to h cross k. याद है ना? ये कहाँ से आ रहा है एक्सप्रेशन? P is equal to h cross k. मैटर वेव से आ रहा है, de Broglie वेव से आ रहा है. What is k? 2 pi by lambda. वेव नंबर बोल सकते हो, मोमेंटम बोल सकते हो. K is वेव नंबर. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? लैम्डा इज इक्वल टू h by p. de Broglie waves. Well, de Broglie. तो मैं इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट मैं इसको अगर h क्रॉस लिखूं तो नीचे भी h क्रॉस आ जाएगा. यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा by h cross by 2 pi. Both sides are multiplied by 2 pi. So from here I get P is equal to h cross. So this expression is 2m e by h cross square. Now P again is equal to e square by 2m. जानते हो ना कैसे आ रहा है? P is equal to e square by 2m. Kinetic energy जानते हो ना, ये वाला एक्सप्रेशन. काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर. ठीक है ना? ओके. तो इसीलिए दिस बिकम्स इक्वल टू, कैन आई राइट इट एज के स्क्वायर. सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू के स्क्वायर. Similarly, if I am introducing, instead of E, I am introducing V0 minus E. Similarly, this becomes equal to something called kappa square. ये Greek एक symbol है. Kappa होता है, kappa. इसे alpha, beta, gamma और जो K आता है इसको kappa. Kappa square. Right. तो ये equation क्या हो जाएगा? In terms of kappa, can I write it as t square psi by dx square plus kappa square psi is equal to 0. ठीक है. और सिमिलरली इन रीजन 2 में तो सिंस इट विल बी t square psi by dx square क्या होगा? माइनस के स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू टी स्क्वायर. ठीक है. तो दिस इज इन वैलिड फॉर रीजन 1. दिस इज वैलिड फॉर रीजन 2. तो इसका सोल्यूशन इट विल बी अगेन, इसका सोल्यूशन होगा psi 1 a e to the power I kappa x. ओके. प्लेन वेव का जो सोल्यूशन है I kappa x, और इसका होगा b cos kx plus
C cos C sin यहाँ पे K हो जाएगा, और in region 3 the same thing will be there, but the only thing is it is on the other side, minus plus or minus का change हो रहा है, so this will be, this is sigma 2, sigma 3 थर्ड रीजन में सेम लाइक दिस, बट इसका सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, डी टू द पावर माइनस आई पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन एट द दिस रीजन इज, यहाँ पे होगा ए टू द पावर आई पाई एक्स, यहाँ पे टी e to the power माइनस आई का पाई एक्स, यहाँ पे b cos के x प्लस c sin x, ठीक है। 1, 2 and 3 तीन रीजन में तीन छोटे सोल्यूशन। अच्छा, ना ये जो पोटेंशियल वेल है, और इसको हम लोग कभी कभी क्वांटम वेल भी बोलते हैं, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड और कन्फाइंड इन दिस सिचुएशन। कन्फाइंड मतलब एनर्जी डिस्क्रीट हो जाता है, राइट। जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में तुम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास, आते ना हार्मोनिक ऑसिलेटर, वाइब्रेशंस जब होते हैं उसमें कैसे होते हैं, हार्मोनिक वाइब्रेशंस E इज इक्वल टू n plus 1/2 h nu. This is harmonic oscillator. This is for n is equal to 1. No, sorry, this is n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2, है ना। तो ये हो जाएगा E0, मतलब जिस वाइब्रेशन, जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर, वाइब्रेशन, दिस इज अ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, है ना, वाइब्रेट करते हैं। सो एट द लोएस्ट स्टेट व्हेन n is equal to 0, E0 will be there. E0 का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा when n is equal to 0 from that expression, हाँ हाँ, मतलब हाफ एच नहीं होगा। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, मतलब यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस, ठीक है, गलत बोलेंगे फिर भी कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। वो नहीं आया क्या, शांडिल्य नहीं आया क्या, उससे कुछ jokes about this is h nu, this is called the 0 point energy। ठीक है, सो द एनर्जी इज गेटिंग क्वांटाइज। उसी तरह से रीजन 2 में ये जो क्वांटम बेल की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे मतलब तुम्हारा जो सब एटॉमिक पार्टिकल, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे बात, इलेक्ट्रॉन इफ इट इज इनसाइड दिस क्वांटम बेल, ठीक है, सो इट्स एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, मतलब इट इज नॉट हैविंग अ कंटिन्यूअस सेट ऑफ एनर्जी, इट्स एक सर्टेन एनर्जी लेवल इसका। पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, अगर तुमको याद है तो En 1D बॉक्स में, 1D बॉक्स में क्या सा था, En इज इक्वल टू n स्क्वायर
ये था ना यार, ये वाला एक्सप्रेशन वन डायमेंशनल बॉक्स में, तो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी यहाँ पे इस रीजन में, तो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, E0, E1। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम डिफरेंस नहीं है जैसे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ n² आ जाएगा, ठीक है। सो इफ दिस इज E0, ये इसका जो this was initial, so if this was say E0, this was say was E0 और E1 यहाँ पे, E0 यहाँ पे नहीं होगा, which will correspond to n² h² by 8m l²। तो यहाँ पे E1 will be h² by 8m l², h² नहीं होगा सर, ठीक है। तो द फर्स्ट वन विल करस्पॉन्ड टू n इज इक्वल टू 1, सेकेंड वन विल करस्पॉन्ड टू n कितना हो जाएगा, when n is equal to, this is for n is equal to 1 and this will be for n is equal to 2, तो 4 times हो जाएगा ना, will be equal to 4E1। तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा कितना, 3E1। इससे ऊपर जाओगे तो और भी ऊपर, ये कितना होगा 9E1। सो पहले दो में डिफरेंस कितना था 3E1, इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा फ्रॉम 4 to 5, yes 5, ठीक है। तो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये ऐसा हो जाएगा। इफ यू कंपेयर दिस विद एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जहाँ पे इक्वली स्पेस्ड है, इस केस में एनर्जीज आर इंक्रीजिंग, energy levels are increasing, one dimensional also। So this is one aspect। तुम्हारे जो जितने मॉडर्न ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि इसका नाम सुना है CMOS, have you heard about this? सारे जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, they are based upon CMOS, complementary metal oxide semiconductors, या फिर इट्स बेसिकली ट्रांजिस्टर्स। सो यहाँ पे देयर इज अ पार्ट मेटल ऑक्साइड, सो दिस मेटल ऑक्साइड एक्ट्स एज अ क्वांटम वेल, ठीक है। तो तुम्हारे जो लॉजिक सर्किट्स है, क्वांटम क्यूबिट्स, क्वांटम कंप्यूटेशनल क्यूबिट्स, बिट्स तुम लोग जानते हो 1 and 2, क्वांटम कंप्यूटेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन क्यूबिट्स, क्वांटम बिट्स। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड अपॉन दिस क्वांटम मैकेनिक्स। वहाँ पे कन्फाइनमेंट ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सो दिस इज वन एस्पेक्ट। दूसरा जो एस्पेक्ट है दैट इज कॉल्ड टनलिंग। तो क्वांटम कन्फाइनमेंट समझ में आ गया, QC confined। Now we will discuss about QT, tunneling। टनलिंग तो पहले टनल, इसके ऊपर बहुत सारी डिवाइसेस हैं। टनल डायोड्स एक चीज़ होता है, उसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स में तुम लोग पढ़ोगे। There is a microscopic technique called SPM,
स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। तो टनलिंग एक्चुअली क्या है? टनलिंग वेरी सिंपल, मेरे पास अगर कोई बैरियर है, ठीक है, जिसका कि पोटेंशियल है V0, राइट, और दूसरी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसका एनर्जी है E, ठीक है। तो E इज लेस देन V0, so classically E cannot pass this. For E to go to the other side or to pass it, it has to have an energy more than V0. लेकिन in spite of that, the quantum mechanics क्या बोलता है? It can still penetrate this barrier. It will decay out. ऐसे करके decay हो जाएगा, लेकिन it will penetrate. A process called tunneling. Can tunnel through the barrier. इसका मैं थोड़ा सा तुमको एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि एक प्रोब होता है, इंस्ट्रूमेंट का एक प्रोब होता है, मतलब जिससे हम लोग स्कैन करते हैं, राइट। और मेरे पास मान लो जो सैंपल यहाँ पे है, इसको मुझको स्कैन, मतलब इसके इमेज मुझको लेना है, बेसिकली आई वांट टू लाइट सी द इमेज। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या होता है? यूज इट विद द हेल्प ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मान लो ऐसे ऐसे एटम्स हैं, एटम्स हैं सैंपल सरफेस के ऊपर। अच्छा, इसका जो प्रोब, जो इंस्ट्रूमेंट का जो प्रोब है, वहाँ पर भी एक एटम है, ठीक है। तो इफ इट कम्स वेरी क्लोज टू दिस एटम, नॉट इन कॉन्टैक्ट, comes very close to this atom, so this becomes a potential barrier. ये वाला इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैंने इसको ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन कैन टनल थ्रू दिस बैरियर, समझ रहे? सो द गैप बिटवीन द टिप और ये वाला एटम के बीच में जो गैप है, एयर गैप है, और वैक्यूम गैप है, जो भी है, दैट करिस्पॉन्ड्स टू दिस बैरियर। और इलेक्ट्रॉन कैन टनल थ्रू, इलेक्ट्रॉन अगर टनल होगा तो मेरे पास एक सर्किट है यहाँ पे, मेरा सर्किट, आई कैन मेजर द कितना मेरा इलेक्ट्रॉन पास हुआ, दैट मीन्स करंट, इलेक्ट्रॉन पास होना मतलब क्या? करंट। फ्रॉम द करंट, टनलिंग करंट, आई कैन जनरेट द इमेज है। अच्छा, मैं इमेज कैसे जनरेट करूँगा? बिकॉज दिस टनलिंग पोटेंशियल T, अच्छा, व्हाट इज माई साई 2 कितना आया था? सो साइड 3 कितना आया था? इट वाज इक्वल टू कप्पा एक्स, ये आया था ना, ठीक है। तो दिस इज द वेव फंक्शन, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? प्रोपोर्शनल टू, मैं बोल सकता हूँ e टू द पावर -2 x है। x इज बेसिकली द कितना मेरा बैरियर डायमेंशन है, मतलब ये अगर a है तो दिस विल बी a, ठीक है। तो इसी को मैं बोलता हूँ टनलिंग प्रोबेबिलिटी, है ना, ठीक है, टनलिंग प्रोबेबिलिटी। और ये जो k है, another interesting thing is that it will tunnel, but how much it can tunnel, कितना दूर जा सकता है, इसका जो इंटेंसिटी तो कम हो जाएगा, that will again depend upon this value, this is called decay length, the intensity is getting decayed, is again equal to 1 by ठीक है, कितना दूर तक ये डिके करेगा।
स्लाइटली क्लियर, नॉट एग्जैक्टली, स्लाइटली क्लियर। तो ये जितने भी सारे जो एक इंस्ट्रूमेंट तो अच्छा, सो डीके लेंथ अगर ये है मतलब ये समझ सकते हो कि जो एटम्स का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वेरी करेगा एज इट स्कैन्स थ्रू द सैंपल। इट्स नॉट यूनिफॉर्म, कुछ एटम्स ऊपर नीचे होंगे। सो ए वैरीज है, ये यहाँ पे ए वैरीज मतलब माई करंट विल वैरी, सो आई विल गेट एन मॉर्फोलॉजी ऑफ द सरफेस एटम बाय एटम। तो मैंने एक इमेज तुम लोगों से शेयर किया था। STM वॉज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जिससे कि फर्स्ट टाइम एवर वी कुड एक्चुअली विजुअलाइज द एटम। पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को हम लोग क्या देखते थे, हम लोग सरफेस मॉर्फोलॉजी, ग्रेन बाउंड्रीज एंड ऑल, लेकिन अगर मुझको एग्जैक्टली एटम देखना था, दैट वाज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट वाज यूज्ड, और मुझको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, एटॉमिक विजुअल, दिस वाज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। स्कैनिंग, टनलिंग, 1991 में ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। सो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, राइट? सो इट विल बी क्लियर बेस्ड अपॉन दैट।